हाय, ईकास क्लाउड में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा, व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाई डेटा साइंस, एग्जाम्पल, प्रीरिक्विजिट्स फॉर डेटा साइंस, व्हाट डज ए डेटा साइंटिस्ट डू, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस एज ए करियर। पहले हम व्हाट इज डेटा साइंस समझने का कोशिश करते हैं। डेटा साइंस एक डोमेन ऑफ study that deals with vast volumes of data using modern tools and techniques to find unseen patterns, derive meaningful information, and make business decisions. Data science uses complex machine learning algorithms to build predictive models. The data used for analysis can be from multiple sources and present in various formats. डेटा साइंस मतलब ये एक टेक्निक है, उसको यूज करके हम लोग एक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डेटा, वो भी हम कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं व्हाई डेटा साइंस। डेटा साइंस or data-driven science enables better decision making, predictive analysis, and pattern discovery. Data science helps us to find the leading cause of a problem by asking the right questions. Second, perform exploratory study on the data. Third, model the data using various algorithms. Fourth, communicate and visualize the results via graphs, dashboards, etc. अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Data science is helping the airline industry to predict disruptions in travel to alleviate the pain for both airlines and passengers. With the help of data science, airlines can optimize operations in many ways, including: first, plan routes and decide whether to schedule direct or connecting flights. Second, build predictive analytics models to forecast flight delays. Third, offer personalized promotional offers based on customers' booking patterns. Fourth, decide which class of planes to purchase for better overall performance. दूसरा एग्जाम्पल, let's say you want to buy new furniture for your office. When looking online for the best option and deal, you should answer some critical questions before making your decision. नीचे इसको दिखाया है। पहले हम डज वेबसाइट सेल फर्नीचर, ये क्वेश्चन को जानना चाहते हैं। अगर वो यस है तो हम लोग फिर से रेटिंग के बारे में सोचते हैं, अगर नो है तो हम लोग वेबसाइट को वहां पर क्लोज कर देते हैं। अभी समझते हैं यस। इन केस यस, हम लोग अभी रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 है या नहीं देखते हैं। नहीं है तो हम वेबसाइट को वहां पर ही क्लोज कर देते हैं। अगर है तो हम लोग उसके बाद डिस्काउंट के बारे में देखते हैं। अभी हम डिस्काउंट ग्रेटर देन 20% में देखना चाहते हैं। अभी नो है तो हम वेबसाइट वहां पर ही क्लोज कर देते हैं। अगर यस है तो हम प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। अभी प्री रिक्विजिट फॉर डेटा साइंस के बारे में जानते हैं। पहले मशीन लर्निंग। Machine learning is the backbone of data science. Data scientists need to have a solid grasp on machine learning in addition to basic knowledge of statistics. इसका मतलब मशीन लर्निंग एक डेटा साइंस के लिए मेन कंपोनेंट है। हम लोग मशीन लर्निंग में अच्छा है तो आराम से डेटा साइंस सीख सकते हैं। दूसरा, मॉडलिंग। Mathematical models enables
you to make quick calculations and predictions based on what you already know about the data. Modeling is also a part of machine learning and involves identifying which algorithm is the most suitable to solve a given problem and how to train these models. दूसरा कंपोनेंट हम लोगों को थोड़ा मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस मशीन लर्निंग को यूज़ करता है। मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो मैथमेटिकल मॉडल है, इसका मतलब ये सब मैथमेटिक्स के ऊपर ही चलता है। अभी तीसरा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आर एट द कोर ऑफ डेटा साइंस। A study handle on statistics can help you extract more intelligence and obtain more meaningful results. इसका मतलब हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स आया तो हम लोग और भी इनसाइट्स डेटा से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक का जो भी कंसेप्ट आता है जैसा मीन, मोड, मीडियन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमें डेटा को और भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए हेल्प करता है। आगे जाके fourth one, programming. Some level of programming is required to execute a successful data science project. The most common programming languages are Python and R. Python is especially popular because it's easy to learn and it supports multiple libraries for data science and machine learning. इसका मतलब हमें डेटा साइंस में अपना करियर बनाना है तो थोड़ा प्रोग्रामिंग आना चाहिए। प्रोग्रामिंग नहीं आया तो हम प्रोग्रामिंग को पहले सीखना चाहिए, उसके बाद डेटा साइंस में आने का सोचना चाहिए। अभी मार्केट में देखा तो कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेटा साइंस में यूज़ करते हैं वो है पाइथन और आर। आर उतना नहीं आजकल, लेकिन पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिसका कारण ये है कि पाइथन बहुत आसान हो जाता है स्टडी करने के लिए, और दूसरा इसमें बहुत लाइब्रेरीज है, उसको यूज़ करके हम आराम से मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर सकते हैं, डेटा साइंस का डेटा एनालिसिस पार्ट कर सकते हैं। सो सबके लिए कुछ ना कुछ लाइब्रेरी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके वजह से क्या होता है कि हमें डेटा साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो जाता है पाइथन यूज करके। और फिफ्थ पॉइंट, डेटाबेसेस। A capable data scientist, you need to understand how databases work, how to manage them, and how to extract data from them. हमें आईटी फील्ड में रहना है तो डेटाबेस तो पता रहना ही चाहिए। वो जो भी फील्ड हो, हर एक फील्ड में डेटाबेस तो आजकल नॉलेज तो आजकल बहुत एसेंशियल है। बिना डेटाबेस के नॉलेज आप कोई भी आईटी और सॉफ्टवेयर फील्ड में काम कर ही नहीं सकते। डेटा साइंस के लिए कोई सेपरेट नहीं है, यहाँ पर भी आपको डेटाबेस नॉलेज तो रहना ही चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस रिक्वायर्स डेटा एंड ट्रेडिशनली वी स्टोर डेटा इन डेटाबेसेस। इट मे नॉट कंटेन बड़ा डेटा, लेकिन डेटाबेस का नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको डेटा साइंस फील्ड में रहना है तो। अभी हम जानना चाहते हैं व्हाट ए डेटा साइंटिस्ट डू, मतलब वो क्या काम करता है एज ए डेटा साइंटिस्ट। अगर एक आदमी डेटा साइंटिस्ट है तो वो क्या क्या काम करता है वो जानने का कोशिश करते हैं। ए डेटा साइंटिस्ट एनालाइजेस बिजनेस डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स। In other words, a data scientist solves business problems through a series of steps, including first one, ask the right questions to understand the problem. Second, gather data from multiple sources, enterprise data, public data, etc. Third one, process raw data and convert it into a format suitable for analysis. Fourth one, feed the data into the analytics system, machine learning algorithm or statistical model.
और फिफ्थ वन, प्रिपेयर द रिजल्ट्स एंड इनसाइट्स टू शेयर विद द अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स। ये सभी डेटा साइंटिस्ट का काम है। मतलब उसका काम क्या है, एक बिजनेस का प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे हम सुपरमार्केट में जानना चाहते हैं कौन सा आइटम बहुत ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। सो इसका मतलब डेटा साइंटिस्ट का जॉब रोल यही है कि वो कोई भी एक बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करता है, वो डेटा का यूज करता है। और उसका फर्स्ट स्टेप होता है पहले प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। एक बार आप प्रॉब्लम समझ गए तो उसके बाद कौन सा डेटा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है, वो होगा आपका सेकेंड स्टेप। और आप उस डेटा को कलेक्ट करो। एक बार आप डेटा को कलेक्ट कर दिया तो स्टेप नंबर 3 में आप लोग जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, आप लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, ओके। और उसको हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देते हैं स्टेप नंबर 3 में। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग मशीन लर्निंग या स्टैटिस्टिकल मॉडल, ओके। मशीन लर्निंग मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल दोनों एक ही है। हम इसको बिल्ड करते हैं। इसको बिल्ड करने के लिए हम जो डेटा कलेक्ट किया है उसको यूज करते हैं। एक बार मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड होने के बाद हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, राइट। उसका मतलब क्या है, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं या फोरकास्टिंग कर सकते हैं और हम रिजल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। उसका मतलब यह है कि हमारा रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, वो सब एनालिसिस हम लोग स्टेप नंबर 5 में करते हैं। अभी हम डेटा साइंस को कहाँ पर यूज करते हैं वो देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशंस इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है, डेटा साइंस हर एक इंडस्ट्री में यूज करते हैं या हर एक डोमेन में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप रिटेल इंडस्ट्री ले लो, ओके, रिटेल इंडस्ट्री, ओके, और बैंकिंग इंडस्ट्री ले लो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ले लो, सभी जगह डेटा साइंस को यूज करते हैं। अभी उसमें पहले है हेल्थ केयर, ओके। हेल्थ केयर कंपनीज आर यूजिंग डेटा साइंस टू बिल्ड सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट एंड क्यूर डिसीजेस। मतलब हेल्थ केयर में डेटा साइंस को यूज करके वो एक सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। जब भी वो लोग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करने का थर्मामीटर हो या कैंसर को डायग्नोसिस करने का डिवाइस हो, ये सब बिल्ड करते वक्त वो लोग डेटा साइंस को यूज करते हैं। इससे क्या होता है, उसको बहुत अच्छा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बिल्ड करने में हेल्प होता है। दूसरा गेमिंग। Video and computer games are now being created with the help of data science, and that has taken the gaming experience to the next level. मतलब गेमिंग में भी डेटा साइंस का यूज होता है। डेटा साइंस की वजह से गेमिंग आजकल बहुत आसान हो रहा है और उसमें नया नया फीचर ऐड कर रहे हैं, नया नया एडवांस्ड वर्जन आ रहा है। इसके बाद तीसरा इमेज रिकग्निशन। Identifying patterns in images and detecting objects in an image is one of the most popular data science applications. आप लोग इमेज रिकग्निशन देखा होगा, आप कोई भी फोटो अपलोड किया तो फेसबुक में आजकल उसमें टैग आ जाता है, वो डेटा साइंस के एप्लीकेशन है। डेटा साइंस यूज करके ये लोग ये सब बनाते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ वन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन गिव movie and product recommendations based on what you like to watch, purchase or browse on their platforms. आप लोग Amazon में रिकमेंडेशन देखा होगा, आपका अकाउंट Amazon में तो आपको रिकमेंडेशन आ जाता है, ये किताब आप खरीद लो, ये पेन खरीद लो, ठीक है, ये कपड़ा खरीद लो। ये सब डेटा साइंस का एप्लीकेशन है। डेटा साइंस यूज करके ये लोग रिकमेंडेशन सिस्टम डिजाइन किया है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स। डेटा साइंस इज यूज्ड बाय लॉजिस्टिक्स कंपनी टू ऑप्टिमाइज रूट्स टू एंश्योर फास्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी।
डेटा साइंस को लॉजिस्टिक्स में यूज़ करते हैं। लॉजिस्टिक मतलब आप DHL सुना होगा और फेडेक्स सुना होगा और VRL लॉजिस्टिक सुना होगा। ये सब लोग लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये लोग मतलब पार्सल और वो लोग आइटम को, कोई भी आइटम उनको दिया तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे मुझे कुछ पार्सल भेजना है, हम फेडेक्स के पास गए तो वो लोग लेते हैं, दूसरा बेचते हैं। यहाँ पर डेटा साइंस यूज करके वो लोग कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क को एक पार्सल भेजना चाहता हूँ। न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाने के लिए बहुत रास्ते हैं, उसमें कौन सा शॉर्टेस्ट है, किसमें गया तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, ये सब डेटा साइंस यूज करके ये लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉड डिटेक्शन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस use data science and related algorithms to detect fraudulent transactions। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हम लोग डेटा साइंस यूज करके फ्रॉड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट है तो अगर कोई ट्रांजैक्शन अनयूजुअल हो या एबनॉर्मल है तो इमीडिएटली आपको मैसेज या मेल आ जाता है। अगर आप लोग यस मार्क किया तो वो ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होता है, नहीं तो डिनाई कर देते हैं। और आप लोगों के पास जीमेल में अकाउंट है तो अगर आप दूसरा जगह से लॉगिन करने को ट्राई किया तो आपका मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है, somebody is trying to access your account from some other city। ये सब डेटा साइंस यूज करके किया है। अभी हम डेटा साइंस एज ए करियर क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में देखते हैं। मतलब आप लोग इस फील्ड में आने का कोई यूज है या यूज नहीं है उसके बारे में। ओवर the last 5 years, the job vacancies for data science and its related roles have grown significantly. Glassdoor has named data scientist as the #1 job in the United States as per its 2020 report. The US Bureau of Labor Statistics predicts the rise of data science needs will create 11.5 million jobs by 2026। मतलब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जॉब मार्केट, IT जॉब मार्केट देखा तो वहाँ पर डेटा साइंस का बहुत डिमांड है। वो वहाँ पर क्या प्रेडिक्शन किया है कि 2026 तक 11.5 मिलियन जॉब्स डेटा साइंस में क्रिएट हो जाएगा। There are several job roles that you can look for in the data science domain. Some of the important jobs roles are data scientist, machine learning engineer, data consultant, data analyst। इसका मतलब आप डेटा साइंस का सब जॉब रोल्स रहता है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। जैसे आप डेटा साइंटिस्ट का रोल में काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल में काम कर सकते हैं, डेटा कंसल्टेंट का रोल में काम कर सकते हैं या डेटा एनालिस्ट। According to Glassdoor, the average salary of a data scientist in the United States of America is $113,000 per annum, and in India it's $907,000 rupees per annum। मतलब ग्लासडोर का सैलरी जो कैलकुलेट किया है ग्लासडोर ने डेटा साइंस प्रोफेशनल्स के लिए, वो 113 दैट इज $113,000 US में है और इंडिया में अराउंड 9 लाख पर एनम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए www.ecascloud.com विजिट करो।